Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are going to start a new topic, that is electronic spreadsheet. अभी तक हमने डिस्कस किया है एक सॉफ्टवेयर दैट इज अ वर्ड प्रोसेसर नेम एज MS Word, which is used to create, edit and format a document. Okay, if you want to create a document, you can use a software of Microsoft Office that is named as Microsoft Word. Today we are going to start a new concept of spreadsheet. So first of all, we will discuss what is the meaning of spreadsheet. Okay. Actually, the spreadsheet is derived from the word spread. Spread means फैला हुआ. It can be seen in the context of a newspaper or magazine where two facing pages extend or are spread across the centerfold and considered as one. Okay, it is basically spreadsheet is widely used in accounting and business today. बच्चे स्प्रेडशीट कहाँ यूज होती है? स्प्रेडशीट अर्लियर क्या होता था आपके पास, वेन एवर यू वॉन्ट टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता था, मैनुअली अरेंज किया जाता था ऑन ओवर साइज शीट्स ऑफ पेपर दैट आर कॉल्ड लेजर्स, एंड दीज लेजर्स वर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंपनी. ओके, हम उन लेजर्स के ऊपर क्या करते थे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, जो भी डेटा उसके ऊपर स्टोर्ड है. द ट्रांजेक्शन डेटा यूज टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. लेटर ऑन जो आपके पास जो ये डेटा है वो क्या होता गया, इंक्रीज होता गया. मीन्स लार्ज यू नाउ यू वांट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, विच वॉज डिफिकल्ट टू फिट ऑन अ पेज. तो हमने इस डेटा को स्प्रेड कर दिया एक पेज से मल्टीपल पेजेस के ऊपर. सो दिस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग द डेटा अक्रॉस मल्टीपल पेजेस एंड दस द कंसेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट केम इनटू द एग्जिस्टेंस. सो अब हम स्प्रेडशीट को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं. The very first one software that we can use to create a spreadsheet, that is named as Microsoft Excel, and we will discuss this software in detail. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्प्रेडशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. जब जो हमने MS वर्ड पढ़ा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ Microsoft Suite. The another software that we have to discuss, that is Microsoft Excel. Next is Apache OpenOffice Calc. Okay. Next is you can also use an online utility that is named as Google Sheets. आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. If you have a email account, Gmail account, in fact, then you can use this app of Google to create the spreadsheet, and that is named as your Google Sheets. Another softwares that you can use for creating the spreadsheet is LibreOffice Calc. Next is your GNumeric, and next is your WikiCalc. Okay, so in our syllabus we will discuss this topic in detail, that is named as your Microsoft Excel. Now what are the features of using Excel? हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है एक्सेल, मीन्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर for storing the data and to perform the calculations on data. The very first one is that it provides a large number of formulas and functions. बच्चे आप स्प्रेडशीट में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो. सेकेंड थिंग, आप उसके ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. देखो, आप डेटा को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू परफॉर्म calculations on the data, then we will prefer this software rather than a digital document software. हम क्या यूज करेंगे, we will use a software named as MS Excel. Okay, and MS Excel or any spreadsheet software provides you a large amount of formulas and functions. Now formulas
As the name specifies, these are the mathematical expressions that that are mainly used for performing simple or complex calculations. किसी भी तरह की calculations perform कर सकते हो बेटा आप इससे. And second thing is functions. बच्चे कुछ इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं, मीन्स आपके पास कुछ बने बनाए फार्मूलाज होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एंड दोज इनबिल्ट फंक्शन फार्मूलाज आर नोन एज फंक्शंस. सेकेंड थिंग, जिस तरह से डिजिटल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है दैट यू कैन परफॉर्म formatting features on your data. Similarly, if you are storing the data with the help of any spreadsheet, in any spreadsheet you can also format that data with the help of formatting features available in the available in that software. Formatting means changing the appearance of the data. Next is auto updation of data. नेक्स्ट फीचर जो स्प्रेडशीट में अवेलेबल होता है दैट इज ऑटो अपडेशन ऑफ डेटा. ऑटो अपडेशन का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपने डेटा के ऊपर कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाया है और आप डेटा को चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है that will also get changes. It means the data is automatically recalculated, okay, in the whole worksheet if any change made in a single cell. Next is you can also use another editing property, that is editing feature, that is named as your search and replace. You can search for any word and you can replace any word with your required word. Next is your autofill option. Now what is the meaning of autofill? बच्चे autofill का मतलब होता है this feature helps in entering the data in a series. अगर आप किसी सीरीज को एंटर करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर एंटरिंग 1 2, तो आपको दोबारा से 3 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली ये फीचर क्या करता है, आपकी सीरीज को फिल कर देता है. ठीक है, बट आपकी सीरीज में कुछ प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. नेक्स्ट इज you can also represent your data graphically. It means you can use charts are the graphical representation of data. And next you can also sort your data with the help of spreadsheet. हाँ जी, with the help of spreadsheet software. तो ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं आपको किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर. So that's why we are using the spreadsheet to store our data and to perform the calculations on that data. Is it clear the meaning of spreadsheet? Yes. Students, now we will start with a software which is used to create spreadsheet, and the name of that software is Microsoft Excel. So first of all we will discuss what are the various components of Microsoft Excel. बच्चे, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. दिस इज द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट Excel. Now we will discuss what are the various components of this interface. So whenever you open Microsoft Excel, a new file will get open and this file is known as workbook. ठीक है, जिस तरह से आपके पास बुक्स होती है ना बेटा, इसी तरह से ये एक फाइल को हम बोलते हैं, एक्सेल की एक फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक. सो द वेरी फर्स्ट वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेल इज वर्कबुक. इज इट क्लियर? तो एंड बाय डिफॉल्ट इट्स नेम इज बुक 1. जब भी आपके पास एक्सेल की एक फाइल ओपन होती है, न्यू फाइल ओपन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है बुक 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर वर्कशीट. बेटा, जिस तरह से बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, सिमिलरली आपकी इस वर्क बुक के अंदर मल्टीपल वर्क शीट्स होती हैं, एंड बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 शीट्स. ठीक है, मल्टीपल पेजेस को हम यहाँ पर रेफर करते हैं मल्टीपल शीट्स के वे में. ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कितनी शीट्स ओपन होती हैं बेटा? 3 शीट्स होती हैं एक वर्कबुक के अंदर. एंड यू कैन ऐड मोर शीट्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस न्यू शीट बटन, और इस प्लस साइन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू शीट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज शीट्स. आप इन शीट्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो रीनेम द शीट. ठीक है, आप शीट को क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो. सपोज मुझे फर्स्ट शीट को रीनेम करना है एंड उसको नेम देना है क्लास 9, तो आप क्या करोगे, रीनेम पे क्लिक करोगे, टाइप द नेम हियर
that is for class 9. Now these worksheets are basically used to store the data. ठीक है, पूरी की पूरी फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर हमने क्या ले लिए, मल्टीपल शीट्स ले लिए जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड होगा. नाउ दिस वर्कशीट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, एक वर्कशीट का जो एरिया होता है वो ग्रिड लाइक एरिया होता है, दैट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. बच्चे जब भी आप डेटा एंटर करोगे आप इन रोज एंड कॉलम्स में ऐड करोगे, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. अब रो क्या होती है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है. ठीक है, रोज हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को हम बोलते हैं रोज, एंड रोज आर नेम बाय 1 2 3 4 5 6. रोज का नाम होता है नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट जो आपके पास वर्टिकल डिवीजन है, दे आर नोन एज कॉलम्स, एंड कॉलम्स आर नेम्ड बाय ए बी सी. लेटर्स के फॉर्म में इनका नेम होता है. और बच्चे ऑन अ सिंगल शीट, एक शीट के ऊपर there are 10,48,576 rows are there and 16,384 columns. मीन्स एक सिंगल शीट के ऊपर 10,48,576 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, ये 16,384. एंड intersection of row and column is called a cell and the data is stored in cell. अब आपको डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, स्प्रेडशीट्स में, सेल्स की फॉर्म, सेल्स में. ओके, एंड टू एंटर द डेटा इन द सेल आपको सिंपली उस सेल में क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा. और जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे बेटा वो बन जाएगा आपका एक्टिव सेल. डेटा हमेशा एक्टिव सेल में ही एंटर होता है. इज इट क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया द फाइल ऑफ वर्क एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक. सेकेंड थिंग, a workbook is consist of sheets, and by default how many sheets are there, 3 sheets, and a sheet is further divided into rows and columns. एक शीट के ऊपर 10,48,576 रोज होती हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स को नेम दिया जाता है ए बी सी एंड सो ऑन. इस तरह से बेटा Z तक सिर्फ 26 ही लेटर्स होते हैं. ठीक है, अब 26 के बाद जो कॉलम्स को नेम दिया जाता है दैट इज नेम एज ए मीन्स 2 लेटर का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है ए बी, और जब ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा अप टू AZ, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा BA BC, एंड इस तरह से 2 लेटर के कॉम्बिनेशन के बाद देन इट स्टार्ट 3 लेटर कॉम्बिनेशन, एंड द लास्ट कॉलम नेम इज XFD. ध्यान रखना बेटा, लास्ट कॉलम नेम इज XFD एंड लास्ट रो नेम इज, yes, लास्ट रो नेम इज 10,48,576, क्योंकि रोज को नंबर से नेम किया जाता है और कॉलम्स को लेटर से नेम किया जाता है. और बच्चे आप जिस करंट एक्टिव सेल पर होते हो उसका नेम डिस्प्ले होता है अनदर कंपोनेंट ऑफ एक्सेल शीट दैट इज नेम एज नेम बॉक्स. इस इंटरफेस में नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका नेम बॉक्स. ठीक है, इसी शीट जहां से रोज एंड कॉलम की डिवीजन स्टार्ट होती है उसके ऊपर आपका नेम बॉक्स होता है, एंड नेम बॉक्स ऑलवेज displays the address of the current or which is also known as active cell. बेटा आप कर्सर को किसी भी सेल पर ले जाओ इस टाइम. हाँ जी, सेल को नेम कैसे दिया जाता है, बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखने की चीज है, सेल का नेम होता है बेटा कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नेम. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम ऑन द 5th कॉलम एंड दैट इज नेम बाय E, एंड रोज कौन सी आपके पास 5th ही रो है एंड इट इज नेम बाय E5, सॉरी. सो इस सेल का नेम हो जाएगा E5, और सबसे पहले सेल का नेम होता है आपके पास A1, और जो एक्टिव सेल का नेम है दैट विल डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स. सो इफ यू वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर सेल, आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल पर जाना है तो आप सिंपल उसका नेम भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया T11. जैसे ही एंटर करोगे आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, उस सेल के ऊपर. इज इट क्लियर?
नाउ इफ यू वांट टू मूव टू द लास्ट रो, ठीक है, मुझे फर्स्ट कॉलम की लास्ट रो पे जाना है, तो फर्स्ट कॉलम का नेम क्या है बेटा? फर्स्ट कॉलम का नेम है ए, ओके। नाउ द लास्ट रो नेम इज 10,48,576। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, यू रीच टू द एंड रो पर चले जाएंगे आप। इज इट क्लियर? और इफ यू वांट टू गो टू द लास्ट सेल ऑफ दिस एक्सेल शीट, तो आपको लास्ट सेल का नेम देना है, और लास्ट सेल में लास्ट कॉलम का नेम आएगा फर्स्टली, एंड दैट इज नेम एज XFD, एंड देन लास्ट रो नेम 10,48,576. Now you reach to the last cell. Is it clear? Yes. वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया। वर्कशीट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, और बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है बेटा आपके पास? 3 शीट्स, बट यू कैन ऐड more sheets in your workbook, and you can also rename these sheets. Now if you want to move to the first cell, simply write A1, the address of the first cell. You reach to the first cell. Is it clear? Now our next component is scroll bar. There are 2 scroll bars beta. 2 scroll bars होते हैं यहाँ पर. One is horizontal scroll bar and second is vertical scroll bar. Is it clear? And you can use these scroll bars to navigate through the contents of Excel worksheets. ठीक है, हमने next component भी discuss कर लिया, that is your scroll bars. Now the next component is your row header. बेटा रो हेडर क्या है आपके पास? अभी हमने डिस्कस किया था कि रोज आर नेम्ड बाय नंबर्स. सो रोज के नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड these numbers are also known as row headers. Now what do you next component is your column header. बच्चे कॉलम हेडर कौन से हैं? लेटर अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ द वर्कशीट दैट रिप्रेजेंट योर कॉलम हेडिंग्स. और कॉलम हेडिंग्स के नेम क्या है बेटा? A to Z एंड देन AA to AZ and then BA to BZ and so on, and the last column header is XFD. नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया नेम बॉक्स. यस, नेम बॉक्स क्या होता है बच्चे? नेम बॉक्स, द नेम बॉक्स इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. हाँ जी, अभी आपको मैंने शो किया था, लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो पर डिस्प्ले होता है ये आपके पास, एंड इट डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर, कि आपका पॉइंटर कौन से सेल पर है उसकी लोकेशन बताता है आपको. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज नेक्स्ट टू नेम बॉक्स इज फॉर्मूला बार. बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला बार आपको क्या कहता है? फॉर्मूला बार इज located at the top of the worksheet, okay, and it is located to the right of the name box. बच्चे this bar shows the characters and formulas that you enter in the active cell. बच्चे आप एक्टिव सेल में जो भी एंटर करोगे आपको वो कहाँ पर शो करेगा? दैट विल शो इन द फॉर्मूला बार. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ, I'm going to write in first cell, that is A1 cell. मैंने यहाँ पर लिखा नेम. जैसे ही नेम लिखा वो कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा? आपका फॉर्मूला बार में. इज इट क्लियर? सो और जितने भी आप फॉर्मूलाज या फंक्शंस अप्लाई करोगे अपने डेटा के ऊपर, वो सब कहाँ डिस्प्ले होते हैं? आपके फॉर्मूला बार में. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर शीट टैब्स. दीज आर द शीट टैब्स. बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स थी आपके पास, एंड इफ यू वांट टू नेविगेट थ्रू वन टू अनदर शीट, यू कैन क्लिक ऑन दीज शीट टैब्स, एंड यू कैन ऑल्सो रीनेम अ शीट थ्रू दीज शीट टैब्स. नाउ द नेक्स्ट इज योर, हाँ जी, द नेक्स्ट इज योर स्टेटस बार. बच्चे स्टेटस बार जिस तरह से आपके पास, हाँ जी, आपके पास MS वर्ड में भी स्टेटस बार होता है ना. स्टेटस बार आपको क्या करता है?
स्टेटस दिखाता है करंट, यस करंट, सिमिलर करंट डॉक्यूमेंट का। सिमिलरली यहाँ एक्सेल में भी स्टेटस बार आपको क्या दिखाता है, स्टेटस ऑफ करंट डॉक्यूमेंट, आपको शीट नंबर दिखा देगा, एक्टिव मोड दिखा देगा, एंड आपको अदर इंफॉर्मेशन जो आपकी करंट वर्कशीट की होगी। इज इट क्लियर? सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन एडिशन टू दीज कंपोनेंट्स, बच्चे जिस तरह से हमने एमएस वर्ड में डिस्कस किया था, आपके पास ऊपर एक रिबन भी आता है, रिबन विच इज कंसिस्ट ऑफ टैब्स। टैब्स आर फर्दर, हाँ जी, फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स में क्या होती हैं, वेरियस कमांड्स दैट आर रिलेटेड टू दैट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस इज योर ऑफिस 10, तो इसमें एक फाइल टैब होती है। ऑफिस 7 में इंस्टेड ऑफ फाइल टैब आपके पास क्या आता है, ऑफिस बटन आता है। ओके, सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिस बटन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ फाइल टैब। इज इट क्लियर? सो दीज आर द वेरियस components of Excel workbook. Is it clear? So students, आज हमने सीखा कि वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, एंड स्प्रेडशीट क्या होती है। ओके, और कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द स्प्रेडशीट्स, सो दैट वी कैन स्टोर आवर डेटा एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन आवर डेटा। Is it clear, beta? So students, revise these concepts, and if you have any problem you can contact me. Have a nice day, beta.